She is the definition of timeless beauty. Her eyes will mesmerize you. Brand ambassador for L'Oréal Paris, represented Longines, and walked the red carpet with confidence every single time. By now, you must have guessed who I'm talking about. Yes, you are right. I'm going to talk about Aishwarya Rai today. Aishwarya Rai से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है. She is known as the most beautiful woman in the world. But with that, she has always carried herself with a lot of humbleness. Today, let's break down and see Aishwarya Rai interviews में कैसे perform करते हैं. She's been asked so many difficult questions, controversial questions, questions that provoke her, disturb her, try to get answers out of her, funny, and all sorts of questions. But Aishwarya Rai has answered them every time with confidence and with a smile on her face. There is something that makes her so beautiful, but not just by her outer looks, by her inner beauty as well. Let's see what are the qualities that make Aishwarya Rai the most beautiful person, both inside out. Let's get started. आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी रेफरेंसेस देने वाली हूँ फ्रॉम ऐश्वर्या राय's इंटरव्यूज बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए एंड हाउ शी नेल्ड देम एवरी सिंगल टाइम. तो इसी के साथ आप भी सीख सकते हैं कि जब आप इंटरव्यूज के लिए जाएं तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो कभी भी हैम्पर ना हो, आपकी ब्रांड इमेज कभी हैम्पर ना हो, और थ्रू आउट आपके मन में जो भी चीज है आप उसको भी अच्छे से आंसर कर पाए, दे पाए विद योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, विद क्लैरिटी, विद कन्विक्शन, बट एट द सेम टाइम बाय नॉट हर्टिंग योर ब्रांड इमेज. सो इसी के साथ सबसे पहले हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ. देखते हैं हमारी पहली क्लिप. टेक अ लुक. By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. And is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. Number 1 is wittiness. Did you see her wittiness in this video throughout? कितने अच्छे से ऐश्वर्या राय ने उस क्वेश्चन को आंसर किया, जहाँ पे कुछ लोग इसका बुरा मान सकते हैं या उल्टा जवाब दे सकते हैं. ऐश्वर्या राय ने अपने ह्यूमर को यूज किया, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी चीज़ है ध्यान देने वाली कि उन्होंने ह्यूमर तो यूज किया लेकिन कहीं भी सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने दिया. शी यूज्ड हर क्यूट एक्सप्रेशंस, टेकिंग द टंग आउट एंड स्माइलिंग एंड मेकिंग चीकी फेसेस. उससे क्या हुआ, उन्होंने अपने दिमाग में जो था थॉट वो भी क्लियरली कन्वे किया, बट ऑल्सो सामने वाले को हर्ट नहीं किया बाय यूजिंग द क्यूट फेशियल एक्सप्रेशंस. ये जो है टेक्निक, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे अबाउट ऐश्वर्या राय. दिस इज अ वीडियो फ्रॉम हर यंग एज, जहाँ पर हम ज़्यादा रेकलेस भी हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बोल जाते हैं, बट ऐश्वर्या राय नोज वेरी वेल कि मुझे कितना बोलना है और किस तरीके से बोलना है. एंड एट द सेम टाइम द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज दैट कभी भी उन्होंने अपने कल्चर को कहीं डिमीन नहीं किया. टिल डेट अगर आप उनकी वीडियोज़ देखें तो वो अपने कल्चर को हमेशा नंबर 1 पे रखते हैं, और उसको अगर सामने वाला कभी क्वेश्चन भी करे, she knows how to answer that well. With that, let's move on to point number 2. Take a look at this clip. How soon were you going to get rid of the extra weight you put on to have the baby? It's not something that I feel the need to even be discussing or giving so much attention to, because it was natural in my case. That was the natural turn that my body took. And that's why I have been who I have been. I stepped out in public when I could take time out from my baby. And if I did think it was a big deal, I would have been in hiding or would have done something about it. Everything is accessible today. But that's not the choice that I was making, and I pretty much made that evident. I wasn't disturbed by it. If people were, well, I guess I hope they enjoyed the drama, because I was busy leading a very real life with my baby. See? The second point we are going to talk about is breaking the stereotype. जब आप इतने confident हो अपने बारे में कि आपको कोई apologies करने की ज़रूरत नहीं है, rather जो भी societal norm है आप उसको break करने के लिए ready हो, then you are doing it right, just the Aishwarya Rai style. बहुत 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 क्वेश्चंस अराइज हुए ऐश्वर्या राय के वेट के ऊपर आफ्टर
her pregnancy, and so many trolls and questions and what not has been done, but nothing impacted her. When the question was asked in the interview, आप देख सकते हैं ऐश्वर्या का reaction. She's like, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. एंड इसी से क्या होता है, जब आप एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हों और आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें वेयर यू आर एक्सेप्टिंग योर बॉडी, यू आर ओके कि हाँ आई नो मेरी बॉडी में चेंजेस आए हैं, आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, जो सारी विमेन के साथ होता है. आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि ये क्या हो गया, ओ गॉड मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ अब. दिस इज वेयर योर ट्रू ब्यूटी लाइज एंड दिस इज व्हाट ऐश्वर्या राय डिड. जब आप अच्छे से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरव्यूज पे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं तो लोग आपसे और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, खुश होते हैं कि अरे वाह ये जो क्वीन है ये सिर्फ आउटर ब्यूटी प्रमोट नहीं करती, शी इज़ हैप्पी बीइंग अ मदर, शी इज़ एक्सेप्टिंग हर सेल्फ इन द न्यू बॉडी इमेज दैट शी हैज़. और ये ट्रू क्वालिटी होती है एक ट्रू लीडर की भी. सो अगर आपके अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटी है, बी रेडी टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स. हो सकता है कई बार सोसाइटी हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करे, बट उसके लिए अपने लिए आवाज़ उठाना भी हमारी ही ड्यूटी बनती है. सो डू दैट, डेफिनेटली डू दैट. अगर आप ये वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ भूलना मत सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, इस चैनल को, ताकि आप जो है जुड़े रहें मेरे साथ और सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ये सारी अच्छी वीडियोस आपके तक पहुंचती रहें. बहुत सारा एफर्ट जाता है इन वीडियोस को बनाने के लिए और आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. सो विद दैट लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. फॉर द थर्ड पॉइंट, टेक अ लुक एट दिस क्लिप. Salman Khan. Next question. Vivek Oberoi. Wonderful, wonderful friend and truly been there in every sense of the term. The third point is sharp intelligence. अक्सर लोगों को लगता है इंटेलिजेंस मतलब अपनी नॉलेज दिखाना, लेकिन इंटेलिजेंस का यहाँ कुछ और मतलब है. इंटेलिजेंस मतलब ये भी होता है पता होना कि कब चुप रहना है. और अगेन ऐश्वर्या राय को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीजें हैं जिस पे मुझे अपना ओपिनियन देना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे मुझे चुप रहकर उस चीज को इग्नोर करना है. Only a smart person can know when to keep quiet, and this is done beautifully well over here. She knows that whenever her name is associated with Salman Khan, तो वो बहुत headlines बन जाती हैं और बहुत controversial हो जाता है. And also her past is associated which she does not appreciate and does not want to talk about and respects her personal space. और ये बहुत अच्छे से ऐश्वर्या राय को पता है. जब भी किसी इंटरव्यू में ऐसे किसी टॉपिक पे बात होती है जहाँ पे उनको पता है कि ये ऐसी चीज है जो हेडलाइंस बना सकती है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, शी विल वेरी स्मार्टली हैव अ स्ट्रेट फेस एंड जस्ट से नो कमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. ये बहुत अच्छी मूव है. अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि ऐसी है जो मेरी नॉलेज से बाहर है या जो एक इशू क्रिएट कर सकती है, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू कीप क्वाइट ओवर हियर, या मुझे अभी इस वक्त इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मे बी टाइम आएगा नेक्स्ट जब मैं इस बारे में बात करूं, पर अभी के लिए आई वुड लाइक टू रिमेन क्वाइट एंड साइलेंट. ये बहुत ही अच्छी और स्मार्ट मूव है ताकि आप किसी को ऑफेंड भी नहीं करें. आप प्यार से बस उसको बोलें कि प्लीज़ मैं अभी इसको आंसर नहीं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. That's our point number 3. With that, it's time for point number 4. Take a look at this clip. So I want to ask you, do you believe that you are the most beautiful woman in the world? And if not, then who do you think is the most beautiful woman in the earth? And you cannot take your mother's name. Hi Anushka, and very tricky because you have taken my mother out of the equation. But for a question like this, you can't take the mother out of me. So, I would like to say that beauty is definitely in the eyes of the beholder, and this beholder can't but help see beauty nowadays in the face and the eyes. I completely gaze into all the time, and I'm unabashedly, obsessively in love with my daughter. So for me, at this point in time, Aradhya. It's all Aradhya for sure. Point number 4 is simplicity. ये जो वीडियो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज मैं खुद एक मदर हूँ और अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि एक मदर के लिए सच में सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसके बच्चे ही हो सकते हैं. और यही चीज़ ऐश्वर्या राय ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बोली.
यहाँ पर एक स्मार्टनेस भी है जो ऐश्वर्या राय ने उस टाइम पे अपना ब्रेन यूज करके इमीडिएटली ये आंसर सोचा, एंड प्लस उसके अंदर उनकी सिंप्लिसिटी भी दिखती है कि अगर एक माँ से पूछा जाए तो उनके लिए उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ये स्मार्ट मूव इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी मदर से पूछें, नो मैटर वो दुनिया के किस कोने में है, तो वो सच में यही बोलेंगे कि उनके लिए सबसे खूबसूरत उनके बच्चे ही हैं। तो यही चीज़ ऐश्वर्या राय ने भी यूज़ करी। इट मीन्स मैं या आप या कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा, और ये रिलेटेबिलिटी ही जो है वो एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करती है। एंड शी इज़ ब्यूटिफुली क्रिएटेड दैट कनेक्शन बाय यूजिंग द सिंपल थॉट प्रोसेस विच इज़ द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। तो अगर आप भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाउ कैन आई क्रिएट दैट कनेक्टिविटी एंड आई कैन क्रिएट दैट कनेक्शन विद माई मासेस। वो ऐसी ही चीज़ों पे आएगा जब हम उनके साथ कोई ऐसी बात पे बात करेंगे जो वो भी रिलेट कर सके, सारी दुनिया ही रिलेट कर सके रादर उसके साथ, ना ही सिर्फ इंटरव्यूअर। तो इसके साथ सिंप्लिसिटी जो है छोटी सी ट्रेट है बट बहुत बिग बेनिफिट देती है हमें। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट पॉइंट, और ये ऐसा पॉइंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगता है, द वन दैट ट्रूली मेक्स ऐश्वर्या राय हु शी इज। फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस क्लिप। I mean, when did you first look in the mirror and say, hey, I'm gorgeous? Cornered me on that one. No, actually, probably after the title, it had me turning around and saying, did it have to be me? Oh, come on. Honestly, I've never really looked in the mirror and said, hey, gosh. The fifth point and the most important one is grace. The grace with which she talks. हम सबको पता है ऐश्वर्या राय की ब्यूटी के बारे में, but the way she complements her beauty with her voice is something that makes her stand out. आज भी अगर आप नोटिस करें ऐश्वर्या राय जिस तरीके से बात करते हैं वो बहुत ही ग्रेसफुल, पॉइज्ड और एलिगेंट लगता है। आप अपने बात करने के तरीके से, द टोन दैट यू यूज, यू कैन से मिलियन थिंग्स अबाउट यू। और यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने इतने सोफिस्टिकेशन से बात करके अपनी ब्रांड इमेज बनाई कि मैं सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अपने थॉट्स में, अपने आवाज़ में, अपने बोलने के स्टाइल में, बैठने के स्टाइल में ऑल राउंडर ब्यूटीफुल हूँ। तभी वो इमेज इतने लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड होती रही है, बिकॉज शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब एट इट बोथ इनसाइड आउट। एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं खुद बहुत ज़्यादा शाय होती थी, बट आई हैव चेंज द वे आई स्पीक, इंटरैक्ट विद पीपल, और उसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है, मेरा बिजनेस कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है, मेरा रवैया लाइफ की तरफ कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है। तो ये टिप मैं आपको भी ज़रूर दूंगी कि आपकी जो भी पर्सनालिटी आप चाहते हो कि लोग उसके बारे में परसीव करें, या आपकी जो भी आउटर पर्सनालिटी है उसको अपनी इनर पर्सनालिटी के साथ मैच ज़रूर करें, अपने बात करने के स्टाइल में, बॉडी लैंग्वेज में, अटायर में, हर चीज़ में इम्प्लीमेंट करें, तो ही आपकी ट्रू ब्रांड इमेज बन पाएगी। तो आपने ऐश्वर्या राय से क्या सीखा? वेल, शी इज बोल्ड बट विदाउट बीइंग ब्रैश, शी इज विटी बट नॉट रूड, शी इज ग्रेसफुल इवन अंडर प्रेशर। ऐश्वर्या राय को यही सब चीज़ें ट्रूली ऐश्वर्या राय बनाती हैं। आई नो इंटरव्यूज कैन बी नर्व क्रैकिंग, कई बार बहुत प्रेशर आता है, लेकिन अगर आप भी अपने माइंड को ट्रेन करें और अपने आप को याद करवाएं कि मेरी जो भी पर्सनालिटी है, आई हैव टू कीप इट इंटैक्ट नो मैटर वेदर आई एम इन एन इंटरव्यू रूम और समवेयर आउटसाइड और एट माई पर्सनल स्पेस, तो आप भी अपनी पर्सनालिटी को हमेशा इंटैक्ट रख पाएंगे और कोई भी इंटरव्यू आए उसको ईजिली एस कर पाएंगे। So well, with that, let's wrap up this video, but don't forget to subscribe to this channel. और हाँ, एक बहुत ज़रूरी काम है मेरे को आपसे before we wrap up. मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट कौन सी पर्सनालिटी है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और उनकी क्वालिटीज़ या उनकी जर्नी को ब्रेक डाउन करूं और कम्युनिकेशन की कोई नेक्स्ट ट्रेट उससे लिंक करूं। तो प्लीज़ tell me your favorite personality and my next video will be on that soon. Till then, bye bye and take care.